Hello everyone. Uh, First of all, I would like to express my deep sense of gratitude for the entire team of organizing team of Ramanujan College for inviting me here on this wonderful online faculty development program. Really, I must congratulate them for their so many initiatives like the enrichment spectrum, national mission on teachers and teaching, and various other initiatives. Really remarkable effort on their part. Today I'll be speaking on the role of Dincharya and Ritucharya uh, in improving and achieving our good health. We all know in modern times, in this present day scenario, the workplaces have gone a tremendous metamorphosis, and with these new changing times, we need to develop new skills. And here I would like to quote Charles Darwin's quote in his book Origin of Species. He says, it is not the most intelligent or most powerful species that is gonna survive, but the species who accepts the change and adopts itself to the new emerging change, and that is the species which is gonna survive. So in these times, with the new turmoils, new challenges, we need to adopt to new methods, and so that we can tread this time of stress in a most peaceful, calm way. So for this we need not go much further, because our ancient wisdom and the text like Ayurveda, naturopathy, yoga, all the ancient texts have all the answers in them in dealing various kinds of situations. But the only thing is, all those ancient wisdom and knowledge need to be adopted in according to the present day scenario. So this is what today I am gonna talking about. Much has been written in Ayurveda about Dincharya, Ritucharya. So, but according to our present situation in our modern times, what are the things which are really practical for all of us to adopt and inculcate in our daily routine to benefit from them and lead a very stress free life. So, uh, first of all, preservation of health is a duty. Uh, very few people are conscious of such a thing as physical morality. हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इस बात को हमें समझना होगा। और इस जिम्मेदारी को समझते हुए सबसे पहले हमें ये जो हमारा शरीर है, जो हमारा वहीकल है, जो हमारे जीवन यापन का सबसे बड़ा साधन है, उसे समझना होगा। हमारा मानव शरीर ईश्वर की बनाई हुई सर्वोत्तम सबसे अनुपम रचना है, और ये कोई मामूली नहीं है। ये जो मानव शरीर है, ये एक दिव्य है और ईश्वरीय है। और प्रत्येक प्राणी जो है, इस जिसको भी ईश्वर ने बनाया है, उसके भीतर एक सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी, सेल्फ मेंटेनिंग और सेल्फ रिपेरेटिव मैकेनिज्म उसके भीतर लेकर वो इस पृथ्वी पर पैदा होता है। और इसी क्रिएटिव इंटेलिजेंस पर हमें पूरा अपना विश्वास, अपना फेथ रखते हुए और इसका सहयोग करते हुए हमें जो है अपने जीवन को चलाना आना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि आजकल हम लोगों को दवाइयों पर इतना अटूट विश्वास है,
मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि दवाइयों पर ये जो विश्वास है, अगर इसके बजाय हम अपनी जीवनी शक्ति, अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस पर पूरा भरोसा रखते हुए यदि हम अपना जीवन यापन करें, तो बहुत सारे कष्टों से हम मुक्ति पा सकते हैं। हमारे भीतर जीवनी शक्ति कहें, वाइटैलिटी कहें, प्राण ऊर्जा कहे या ईश्वरीय तत्व कहें, निरंतर कार्यरत है। जब माँ के गर्भ में एक फीटस जो है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है मल्टी सेलुलर बनता है, वो एक सिंगल सेल जिसे हम जाइगोट कहते हैं, वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ पैदा होता है और वो उस इंटेलिजेंस के चलते धीरे धीरे सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर होके और हम इतनी बड़ी काया एक दिन जो है उसको पा लेते हैं। हमारे भीतर एक जीवनी शक्ति जो निरंतर कार्यरत है, वो हमें सदा स्वस्थता प्रदान करने में लगी हुई है। इस बात को हमें समझना होगा। हमारे भीतर जो जीवनी शक्ति है, जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे हृदय धड़कता है, हम लोग कॉन्शियस नहीं होते, ये प्रक्रिया स्वतः निरंतर हमारे भीतर चलती रहती है और ये सब हमारे भीतर की जीवनी शक्ति जिसके कारण ये सब संभव होता है। और वही जीवनी शक्ति हमारे को, हमारे शरीर को निरंतर रोग मुक्ति के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहती है। हमारे भीतर अपने जीवन यापन के गलत तरीकों के चलते हमारे शरीर में अलग अलग तरह के विजातीय द्रव्य, टॉक्सिक मैटर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। लेकिन वो बावजूद इन एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर के हमारे ये 4 एलिमिनेटिव ऑर्गन्स, जो हमारी जीवनी शक्ति इन 4 एलिमिनेटिव ऑर्गन्स के थ्रू निरंतर उन विजातीय द्रव्यों को, उन टॉक्सिक मैटर को हमारे शरीर से निरंतर बाहर करती रहती है। जैसे हमारी आंतें मल का निष्कासन करती हैं, हमारे जो फेफड़े हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिलीज़ करते हैं हमारे सांस द्वारा, और हमारे जो गुर्दे हैं, किडनीज़ है, वो पेशाब द्वारा हमारे जो है टॉक्सिन्स को बाहर डालते हैं। और हमारा जो स्किन है, जो त्वचा, विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हमारे शरीर का मल पसीने के द्वारा निरंतर, तो हमारे भीतर ये 4 निष्कासक अंग हमारी वाइटैलिटी या हमारी जीवनी शक्ति इन अंगों द्वारा निरंतर सफाई अभियान में लगी रहती है, ताकि जो भी टॉक्सिक मैटर हमारे भीतर है वो निरंतर उसकी सफाई होती रहे और हमारी शरीर की शुद्धि हो और रोग पनपने से पहले ही वो समाप्त हो जाए। ऐसी है हमारी जीवनी शक्ति। अब आप पूछेंगे कि ये टॉक्सिक मैटर आखिर आता कहाँ से है? जब हम दूषित वायु में सांस लेते हैं, दूषित जल पीते हैं, और आजकल तो भोजन के जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, पैकेज्ड गुड्स, ना जाने कितने टॉक्सिक केमिकल से वो भरपूर होते हैं, ये हमारे भीतर निरंतर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा हार्मफुल पॉइजनस केमिकल्स जो हम दवाइयों के रूप में लेते रहते हैं, ये केमिकल्स, ये पॉइजन्स हमारे शरीर में डेकेड्स तक हमारे शरीर में जमा रहते हैं और धीरे धीरे वो हमारे निरंतर ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं अगर उनका निष्कासन ना हो। समय समय पर हमारी जीवनी शक्ति यूं तो सफाई अभियान में लगी रहती है, मगर हम मानव लोग जो हैं प्रकृति के नियमों से अलग हो जाते हैं और उसका उल्लंघन करते हुए हम असमय भोजन करते हैं, जो नहीं खाने वाली चीज़ें हैं उनको खाते हैं, और श्रम और विश्राम का जो संतुलन है वो हम अपने जीवन में नहीं ला पाते। नींद का भी जो पर्याप्त मात्रा है, ओवरवर्क के चलते
हमारे जीवन में जो निरंतर एक कंपटीशन और स्पर्धा जो आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उससे स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाता है। और इन सभी कारणों के कारण हमारे जीवन में, हमारे शरीर में निरंतर विकार जो है एक्यूमुलेट होते रहते हैं। जब स्पीड ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इज मोर देन द स्पीड ऑफ एलिमिनेशन, तो ये टॉक्सिन जो है, जो साधारण प्रक्रिया हमारी जीवनी शक्ति निरंतर निकाल रही थी उन विजातीय द्रव्यों को, अब हमारी जीवनी शक्ति जो है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स अपनाने पड़ते हैं इस अधिक मात्रा के टॉक्सिक मैटर या विजातीय टॉक्सिक मैटर को शरीर से बाहर करने के लिए। और इन्हीं इसको विजातीय द्रव्यों को निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स जो हमारी जीवनी शक्ति या हमारी भीतरी प्राण ऊर्जा शक्ति जो करती है, उसी को हम रोग का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे भीतर टॉक्सिक मैटर बहुत इकट्ठा हो जाता है, तो हमारी जीवनी शक्ति, हमारे भीतर का जो होम्योस्टेसिस है जिसे कहते हैं, जो एक प्रक्रिया है हमारे भीतर के संतुलन को कायम रखने का, तुरंत ब्रेन को मैसेज जाता है और हमारा हाइपोथैलेमस मैसेज फर्दर देकर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है रेज कर देता है। हमारी बॉडी का जीवनी शक्ति, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज करने का तात्पर्य ये होता है कि उसमें सारे जो टॉक्सिक मैटर है वो जल जाएं और जो इन्वेड किए हुए बैक्टीरिया वायरसेस है उनके लिए जो हमारा शरीर है वो इनहैबिटेबल बन जाए, वो वहाँ सरवाइव ना कर पाए। तो इसीलिए बॉडी जो है टेम्परेचर रेज करती है, जिसे हम फीवर और जिसे हम रोग समझते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझने की बात है, ये जो तीव्र रोग जो तीव्र गति से आते हैं, जैसे बुखार हो गया, खांसी, जुखाम, लूज मोशन, वॉमिटिंग, हेडेक, ये जितने भी तेजी से आवेग से जो रोग आते हैं, वो वास्तव में हमारे शत्रु नहीं, हमारे मित्र हैं, क्योंकि वो हमारे जीवनी शक्ति की, हमारी भीतरी जो दिव्यता है वह हमारे शरीर को स्वच्छ करने के लिए ये कार्य करती है। तो उस समय हमें क्या करना है, जब हमारी जीवनी शक्ति, हमारी वाइटैलिटी हमारे शरीर को स्वस्थता प्रदान करने के अभियान में लगी हुई है, तो यहाँ हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम समझते हैं कि ये रोग जो है हमारे शत्रु हैं और हम उसको अपने शरीर से टेम्परेचर जैसे बढ़ गया तो उसको जो है हम कम करने के लिए पैरासीटामोल, टैबलेट्स और दवाइयाँ, एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। और यदि हमें लूज़ मोशन हुए हैं या वॉमिटिंग की सेंसेशन है, तो उसको हम उसकी रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं। दवाइयाँ लेने से हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन जो हमारी जीवनी शक्ति, हमारे भीतर की दिव्यता जिस कार्य में लगी हुई थी, उसमें हम व्यवधान डाल देते हैं। और जो एक्यूट इलनेस है, ओवर द ईयर्स, जब हम इन एक्यूट इलनेसेस को मेडिसिन के द्वारा सप्रेस करते रहते हैं, तो जो एक्यूट इलनेस, जैसे जो आज सर्दी जुकाम है, ओवर द ईयर्स मेडिसिन खा खा के ग्रेजुअली वो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और बहुत सारे जो है रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स का फॉर्म ले लेती है। और इसीलिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जो ये तीव्र रोग हैं, जैसे ये हम आम तौर पे भी अपने जीवन में देखते हैं कि यदि हम कुछ गलत खा लेते हैं तो तुरंत हमारी बॉडी जो है उसको थ्रो करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए ये प्रकृति के इस अभियान का सहयोग देना, और उस समय जो है हमें उस प्रक्रिया में, उस जो स्वच्छता अभियान में हमें जो है उस प्रकृति का सहयोग देना है। वो कैसे करना है और वो उसमें हम कैसे दिनचर्या करेंगे, यदि किसी भी प्रकार का जो है हमारे को तीव्र रोग, जिसे जैसे मैंने कहा सर्दी जुखाम है, अब सर्दी आने वाली है, सर्दी जुखाम, नज़ला, खांसी, ये फीवर, तो इनको ये हमें ये दर्शाते हैं कि हमारे भीतर की जो जीवनी शक्ति है वो जो है हमारी अभी एक्टिव है, सक्रिय है और वो प्रयत्नशील है
हमारे शरीर से रोग भगाने के लिए और हमें शुद्ध करके हमें जो है स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए। तो ऐसे समय में हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिकली जो हम आज की डेट में जब हम इस समस्या से गुजरें तो हमें क्या रास्ता अपनाना है, वही बताने का मैं प्रयास करूंगी कि जो कि आप प्रैक्टिकली कर भी सकें और आपकी समस्या का समाधान भी हो सके। तो जैसे ही कोई एक्यूट इलनेस या आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि ये प्रकृति है जो सफाई अभियान कर रही है। तो उससे घबराने की, डरने की या उसके चलते आप उसको दबाकर आप मेडिसिन द्वारा उसका शमन करने का प्रयास ना करें, बल्कि प्रकृति का सहयोग दें। उसके लिए जो है मैं 3 दिन का लिक्विड डाइट प्रोटोकॉल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि whenever there is such kind of acute illness, whether it is headache or diarrhea, loose motion, fever और माइग्रेन तक, तो आपको जो है अपनी दिनचर्या में क्या करना है, खान पान के रिलेशन में मैं बताना चाहूँगी कि आपको पहला दिन जो है जैसे ही इस तरह के लक्षण आपको प्रकट हों, आपके हेडेक हो, आपका जो है वीकनेस हो और थ्रोट में अगर आपको, जैसा कि ये आजकल प्रेजेंट कोविड टाइम्स में सिम्टम्स आने लगते हैं, तो इसके लिए भी ये जो है, जो मैं प्रोटोकॉल 3 दिन का आपको बताने जा रही हूँ, ये उसमें भी हमने आजमाया हुआ है और कई पेशेंट्स को बिना मेडिसिन के फीवर डाउन हो गया और उनको काफ़ी राहत मिली। इसमें पहले दिन क्या करना है, आपको 6 से 7 जो गिलास हैं वो सिट्रस फ्रूट जूसेस के, जैसे कि मौसमी का रस, संतरे का रस या चकोतरा है उसका जो भी, या पाइनएप्पल जूसी फ्रूट्स का जो जूस है, वो कम से कम आपको जो है 6-7 ग्लास, और 6-7 ग्लास ही नारियल पानी, ये आपको पूरे दिन में केवल इतना ही इसका जो है सेवन करना है। यानी कि पहला दिन आपको 6-7 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 6-7 ग्लास नारियल पानी। सेकंड डे आपको क्या करना है, सेकंड डे आपका 3 से 4 ग्लास आपके सिट्रस फ्रूट जूस और 3 से 4 ग्लास नारियल पानी पिएंगे। और रात तक डिनर टाइम तक आप अराउंड 250 ग्राम्स टू 300 ग्राम्स आप जो है खीरा, कच्चा खीरा और टमाटर, इसका सेवन कर सकते हैं। याद रखिए, इस जूस, नारियल पानी और सैलेड के जो मैंने बताया खीरा टमाटर के अलावा दूसरे दिन और कुछ भी नहीं खाना है। तीसरा दिन आते आते जो रोगी का जो हाल है उसको बहुत बेहतर महसूस होने लगेगा, और यदि टेम्परेचर और अधिक डाउन 100 तक स्टेबल हो जाएगा तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे नेचुरली ही वो टेम्परेचर जो है बॉडी अपने आप उसको सामान्य करेगी। अगर नहीं होता है तो आप ठंडी पट्टी द्वारा आप उस टेम्परेचर को माथे पर रख के पानी के कपड़े को जो है पानी में, सादे पानी में भिगोकर उसको पेट पर, माथे पर आप रखेंगे कॉन्टिन्यूसली बदल बदल कर, और साथ साथ ये भोजन की प्रक्रिया। अब हम आते हैं तीसरे दिन पर। तीसरे दिन का जो आपका भोजन का क्रम रहेगा वो 2 ग्लास आपके नारियल पानी, 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, ये 12 बजे तक। लंच में आप खाएंगे 250 ग्राम से 300 ग्राम कच्चा खीरा, टमाटर, और रात तक आते आते तीसरे दिन तक व्यक्ति इतना अच्छा महसूस करने लगेगा कि वो सामान्य भोजन आप उसको दे सकते हैं। तो इस 3 दिन के प्रोटोकॉल में समझने वाली बात क्या है कि ये सिट्रस फ्रूट जूस कम से कम 1 ग्लास जो है अराउंड 400 ml का होना चाहिए। 1 ग्लास जूस को पीने के लिए कम से कम आपको 15 मिनट लगाने हैं, धीरे धीरे सिप सिप करके, ताकि वो जूस का घूंट भरेंगे, मुंह में घुमाएंगे ताकि उसमें सलाइवा मिक्स हो और उसका और भी ज़्यादा अच्छे से एसिमिलेशन आपके भीतर हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब हम ये 3 दिन का प्रोटोकॉल जब फॉलो कर रहे हैं, उस समय हमें फिज़िकल स्ट्रेस नहीं लेना है,
और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, जैसे कि मैंने कहा कि आपको भोजन, कोई भी जो सॉलिड भोजन है जो रेगुलर आप खाते हैं उसका त्याग कर देना है तुरंत, और इस तरह से लिक्विड डाइट पर आपको आ जाना है। इस 3 दिन के प्रोटोकॉल से आपको किसी भी प्रकार के जो एक्यूट इलनेस है, चाहे वो फीवर है, चाहे वो किसी भी प्रकार का डायरिया है या लूज मोशन या सिर दर्द, इवन माइग्रेन, तुरंत आपको इससे जो है छुटकारा मिलेगा। और इसमें जो है मानसिक जो स्ट्रेस है, जो मेंटल स्ट्रेस है, यानी कि जब आप ये प्रोटोकॉल करेंगे तो आपको फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल रेस्ट की भी आवश्यकता है, तो आपको इसमें जो है शीघ्रता से लाभ होगा।